So it will undergo oxidation or reduction. Then if you know the oxidation potential and reduction potential, then we can calculate the cell potential. But we know that according to IUPAC convention, we always use standard reduction potential, correct? So in the last lecture, we have seen the formula. Which formula we have seen in the last lecture? E0 cell, that is standard cell potential, is equal to standard potential of the cathode minus standard potential of the anode. Means for cathode and anode, we are considering which potential? Reduction. Nothing is mentioned means which potential? Reduction. And nothing is mentioned here means reduction. Okay, so last time we have done 2 numerical. We'll complete the remaining numerical and we'll go for the next equation. Question 2. Question 2.5. This is on page number 118. Question 2.5, page number 118. Have you done this numerical? Yes, sir. Yes. I think we have done all the numerical here of this type. Today we'll start with the new topic here. Yes, the new topic we are doing here is dependence of cell potential on concentration, and this equation is given by the person called as the Nernst equation. See, dependence of the cell potential means this cell potential also depends on what? Concentration, correct? Now see, in the last lecture, when we calculate the standard cell potential, then the concentration of the cathode solution and anode solutions are 1 molar. और अगर वहां पे कोई गैस इन्वॉल्व रहेगा तो गैस का प्रेशर कितना रहेगा? 1 एटमॉस्फेयर. मतलब स्टैंडर्ड सेल के लिए हमारे कैथोड और एनोड सॉल्यूशन या गैसेस जो भी रहेंगे, they are in their standard condition. मतलब अगर सॉल्यूशन रहेगा तो 1 मोलार और अगर गैसेस रहेंगे तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर. Now we have to calculate the cell potential, but the cell potential which depends on what? Concentration. Cell potential depends upon the concentration. Means what? We are going to study here the dependence of cell potential on concentration. Dependence of cell potential on concentration is given by
नर्स्ट इक्वेशन। मतलब हमें नर्स्ट इक्वेशन कभी यूज करना है कि अगर हमारा सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं रहेगा, मतलब अगर हमारे सेल का कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं रहेगा तो हमें क्या यूज करना है, नर्स्ट इक्वेशन। सो हियर द डिपेंडेंस ऑफ द सेल पोटेंशियल ऑन कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन बाय व्हिच इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन। नाउ वी विल सी व्हाट इज द नर्स्ट फॉर्मूला। Suppose the given the reaction A moles of A react with B moles of B to gives you C moles of C plus D moles of D. Now in this reaction, capital A and B are the reactant and capital C and D are the product. Capital A and B are the reactant, capital C and D are the product, correct? Okay, now here if I want to write down the Nernst equation, how I'll write Nernst equation? E cell equal to E0 cell, E cell equal to E0 cell minus RT upon NF ln, and then here we write in the numerator we write concentration of the product divided by concentration of the reactant. See what is Nernst equation? E cell equal to E0 cell minus RT upon NF ln concentration of the product upon concentration of the reactant, correct? Now you know this is a product and this is a reactant, so I'll just write down the next step. E cell equal to E0 cell minus RT upon NF ln. Now this is a product, but product what we are writing here, concentration. So we write here concentration of C raised to C into concentration of D raised to D divided by reactant concentration of A raised to A into concentration of B raised to B. See what I have done here? C and D are the product. तो product का मैंने यहाँ पे क्या लिया है, concentration का product लिया है, और जो भी coefficient है they are written as a power divided by reactant. What is the reactant? A and B. So I written concentration of A into concentration of B, and small a and B are written as a power. Okay, equation है, but normally यहाँ पे अभी ln, ln का मतलब क्या होगा, base E. ln का मतलब होगा base E. तो we'll convert base E into log 10. तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, E cell equal to E0 cell माइनस और मल्टीप्लाई करोगे तो 2.303 RT upon NF log to the base 10 concentration of C raised to C concentration of D raised to D divided by concentration of A raised to A into concentration of B raised to B. See what I have done here? I have converted ln into log. I have converted ln into log. So when we convert ln into log, we have to multiply which number? 2.303. Now here we all know in this meaning, in this equation here, that E cell हमें calculate करना है. E0 cell क्या है? Standard cell potential. और हमें standard cell potential का formula मालूम है. 2.303 number है. R is a gas constant. R is a gas constant. We know the value of the R, that is 8.314 joule per Kelvin per mole. This is the value of the R in joule. Temperature, we always take temperature in Kelvin. In Kelvin. N is, small n means number of moles of electron, number of moles of electron, मतलब कितने electron transfer हो रहे हैं, and F is a Faraday. F is a Faraday. And we know 1 Faraday is equal to 96,500 coulomb.
1 Faraday, F is a Faraday, and 1 Faraday equal to 96,500 coulomb, correct? Now here what we'll do, these are all number. These are number, this value is constant, R is also constant, temperature is also constant, and F is also constant. So to make our calculation small, I will just substitute one number in N change होगा, N क्या है, number of moles of electron है, वो change होगा, तो all these values will put together here. So here I'll write down at 25 degrees Celsius. At 25 degrees Celsius, 2.303 RT upon NF. At 25 degrees Celsius, 2.303 RT upon NF. In this equation, देखो ये हमारा number है. See, I have said here कि we are performing reaction at what temperature? 25 degree, and we know 25 degree. If I convert into Kelvin, then 25 plus 273 कितना बनेगा? 298 Kelvin, correct? मतलब हम लोग assume करें कि हमारा जो reactions होगा वो हमेशा कहाँ पे होगा? At 25 degree Celsius. लेकिन 25 डिग्री को मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 25 में कितना ऐड करोगे? 273, and 25 plus 273 is 298 Kelvin. So here I'll write 2.303. R is a gas constant. Temperature is 298 divided by N. N नहीं लेना हमें, because N will keep on changing. Faraday, and 1 Faraday is equal to 96,500. And if I multiply all these, what value we get? 0.0592. 0.0592 ये value मिलेगा, correct? मतलब for this calculation. So the whatever value I have got, I'll substitute here. 2.303 RT upon F के जगह substitute कर दो. तो यहाँ I'll write down the equation: E cell equal to E0 cell minus 0.0592 upon N. बाकी सबका हमने कैलकुलेशन कर दिया, ये सारे टर्म्स का कैलकुलेशन कर दिया, तो खाली n बचा. एंड log to the base 10 concentration of C raised to C into concentration of D raised to D divided by concentration of A raised to A into concentration of B raised to B. ये हमारा वो नर्स्ट इक्वेशन. आप इसे भी नर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हो, बिकॉज नॉर्मली इन द एग्जाम दे आस्क राइट डाउन द नर्स्ट इक्वेशन. तो आप इसे भी नर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हो, और सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो मिलेगा उसे भी आप नर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हो, करेक्ट? सो दिस नंबर हियर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 and equation 2 can be called as Nernst equation. Equation 1 and 2 can be called as Nernst equation, correct? So I'm just numbering here. I'm numbering this as a equation number 1 and this as a equation number 2. इसको मैंने number 2 number. और जब एग्जाम में आएगा कि नर्स्ट इक्वेशन मेंशन करो, तो मैं सारे टर्म्स के मीनिंग भी बोलने पड़ेंगे. व्हाट इज आर स्टैंड फॉर गैस कांस्टेंट, T is the temperature in Kelvin, F is the Faraday, and N is what? Number of moles of electron transfer during the reaction. तो ये हमारा नर्स्ट इक्वेशन. नर्स्ट इक्वेशन कभी यूज करना है कि अगर हमारा सेल या अगर हमारा इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं रहेगा. स्टैंडर्ड कंडीशन कैसे देखना है कि अगर हमारे सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, गैसेस का प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेयर है, इसका मतलब हमारा सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में है. लेकिन अगर हमारा कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर से कम और ज्यादा है, या हमारा प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से कम और ज्यादा है, तो हमारा सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है. तो हमें नर्स्ट इक्वेशन, तो हमें एक काम करेंगे हम लोग, विल सॉल्व द न्यूमेरिकल. अब
ओके, इन द नर्स इक्वेशन में दो पार्ट है यहाँ पे इन दिस, ये हमारा नर्स इक्वेशन है, इसमें दो पार्ट है, एक पार्ट है हमारा E0 सेल और ये हमारा दूसरा पार्ट। E0 सेल का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा इलेक्ट्रोड या हमारा सेल कौन से कंडीशन में रहेगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में रहेगा। और इसे हम देखो, अगर हमारा सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में है, राइट हियर, द फर्स्ट टर्म on the right hand side, the first term on the right hand side first term मतलब ये, the first term on the right hand side represents standard electrochemical condition. Okay, the first term on the right hand side represents what, standard electrochemical condition, मतलब ये क्या represent, हमारा सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा तो ये वैल्यू ये मिलेगी। और ये टर्म क्या है, देखो दूसरा टर्म, the second term is the correction for non standard state condition। मतलब सेकेंड टर्म जो हमारा ये टर्म है उसे क्या बोले हम लोग, द सेकेंड टर्म इज द करेक्शन फॉर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब ये जो वैल्यू हमें है वो स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन से मिलेगा और ये वैल्यू हमें किससे मिलेगा, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन से मिलेगा। एक न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो नाउ विल गो, ये हमारा इतना ही ध्यान में रखना कि ये हमारा नर्स्ट इक्वेशन है। सेम इक्वेशन आप गैसेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। गैसेस के लिए कैसे अप्लाई करोगे, देखो अगर गैसेस के लिए अप्लाई करना तो क्या रहेगा, ई सेल इक्वल टू E0 सेल, E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0592 अपॉन n, ओके, n into partial pressure of C raised to C into partial pressure of D raised to D divided by, sorry, log to the base 10, partial pressure of A raised to A into partial pressure of B raised to B. The same formula can be also applied for gases। मतलब अगर हमारा रिएक्शन गैसीय स्टेट में रहेगा तो हम इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं कि हमें नर्स इक्वेशन कभी यूज करना है, अगर हमारा सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं रहेगा तो, करेक्ट, हमें नर्स इक्वेशन यूज करना है। तो नाउ विल सॉल्व द न्यूमेरिकल व्हिच इज बेस्ड ऑन द नर्स इक्वेशन। पेज नंबर 119, question 4-6, page number 119, question 4-6. I'm showing the, they have said here, calculate EMF, electromotive force of the following cell at 25 degrees Celsius।
calculate the EMF of the cell at 25 degrees Celsius, and then they have given the cell formula. Zn solid in contact with Zn2 plus having concentration 0.08 molar in contact with chromium 3 plus having concentration 0.1 molar in contact with chromium in the solid state. ये हमारा सेल फॉर्मूला है. देखो Zn in contact with Zn2 plus ये एनोड है, क्रोमियम इन कॉन्टैक्ट विथ क्रोमियम 2 प्लस ये कैथोड है. और देखो यहाँ पे Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार नहीं है, क्रोमियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार नहीं है, करेक्ट. एंड they have given standard potential of the zinc is minus 0.76 volt and standard potential of the chromium is minus 0.74 volt. Okay. दोनों का दे. सबसे पहले हमें क्या उन्होंने बोला, कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल. लेकिन EMF ऑफ द सेल निकालने के लिए अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूला में हमें यहाँ पे क्या चाहिए, concentration of the product divided by the concentration of the reactant. और दूसरा हमें यहाँ जाए n मतलब how many electrons are involved. तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे एनोड रिएक्शन एंड कैथोड रिएक्शन. So we'll just write down here oxidation half reaction. Oxidation half reaction. अभी मालूम है ये एनोड है हमारा, तो एनोड will undergo which reaction? एनोड will undergo oxidation reaction, करेक्ट. तो यहाँ पे एनोड का रिएक्शन क्या होगा, देखो Zn gives, देखो यहाँ से पता चलेगा चार्ज ऑफ द एलिमेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग. यहाँ पे Zn लिखना है. Zn क्या देगा, Zn2 प्लस देगा. और ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे लिखना है इलेक्ट्रॉन. बैलेंस करो Zn1 Zn1, यहाँ पे चार्ज 0 है तो यहाँ पे +2 एंड -2, ये हमारा ऑक्सीडेशन हो रिएक्शन. Then at cathode we'll have reduction half reaction. कैथोड पे कौन सा होगा, रिडक्शन. ये हमारा कैथोड है. रिडक्शन का मतलब व्हाट, चार्ज ऑफ द एलिमेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग. यहाँ पता चलेगा. तो यहाँ पे डिक्रीज होने से पहले यहाँ पे लिखो क्रोमियम 3 प्लस, इस साइड में लिखो क्रोमियम. देखो पता चल रहा है चार्ज डिक्रीज हो रहा है 3 प्लस और यहाँ पे 0. रिडक्शन का मतलब क्या होता है, इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लिखोगे, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन लिखा E-. तो बैलेंस करो इक्वेशन को, क्रोमियम 1 क्रोमियम 1, यहाँ पे चार्ज 0 है तो +3 और यहाँ पे आएगा -3. ये हमारा सेकेंड हाफ रिएक्शन. सो वी गॉट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द एनोड, वी गॉट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द कैथोड. दोनों रिएक्शन मिल गए. लेकिन अगर मुझे दोनों इक्वेशन को ऐड करना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज टू बी द सेम. तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है. तो व्हाट आई विल डू हियर, अगर मुझे दोनों इक्वेशन को ऐड करना है तो व्हाट आई विल राइट हियर, इक्वेशन 1 is multiply, equation 1 is multiply with 3 and equation 2 is multiply with 2. देखो, बिकॉज अगर मुझे दोनों इक्वेशन को ऐड करना है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बोथ द इक्वेशन हैज टू बी द सेम. और वो सेम करने के लिए इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से. तो मैं 3 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3Zn2 प्लस एंड 6 इलेक्ट्रॉन. और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से. तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 2Cr3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन gives you 2Cr. and now we can add both the equations. See here, because यहाँ इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 3 6 इलेक्ट्रॉन.
इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 2 6 2. Number of electrons are same. Now we can add here, so 6 electron, this 6 electron, and this will get cancelled. Because कैसे cancel होगा, यहाँ पे arrow के बाद है और यहाँ पे arrow के, what is remaining here? 3 zinc. Zinc metal है. मेटल तुम्हें कैसे पता चला, तो यहाँ पे उन्होंने दिया है, देखो, मेटल इन द विच स्टेट सॉलिड. जिंक भी मेटल है और क्रोमियम भी मेटल इन द सॉलिड स्टेट. तो यहाँ पे जिंक इन द मेटल स्टेट प्लस 2 chromium 3 plus ions are in the which state? Aqueous. Gives you 3 Zn2 plus in the which state? Aqueous, plus 2 chromium in the which state? Solid. Okay, ये हमारा cell, this is called as a cell reaction. ये हमारा cell reaction है, और in this reaction how many electrons are involved? 6. So number of electron involved in the process are 6. Electron involved 6 है. अभी फिर मैं फाइंड आउट करूंगा E0 सेल. मैं E0 सेल फाइंड आउट कर सकता हूं, क्योंकि E0 सेल फाइंड आउट करने के लिए ये हमारा कैथोड है, ये हमारा एनोड है. कैथोड क्रोमियम का पोटेंशियल दिया हुआ है और जिंक एनोड है, उसका भी पोटेंशियल दिया हुआ है. करेक्ट. आई कैन फाइंड आउट द E0 सेल. E0 cell is equal to E0 of cathode minus E0 of anode, and they have said cathode is chromium and anode is zinc. Cathode is chromium and anode is zinc. Correct. And they have given the values also. Chromium ka value they have given here as minus 0.74 minus, and the zinc value is minus 0.76. देखो, value of the chromium is minus 0.74 minus, and value of the zinc is minus 0.76. So we'll solve here. 0.74 plus 0.76 और आंसर कितना आएगा? 0.02. 6 minus 4 2, 7 minus 7 0, और ये हमारा E0 से. E0 से, और देखो हमारा E0 सेल अगर सॉरी हमारा E0 सेल पॉजिटिव है, इसका मतलब E0 सेल अगर पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब उन्होंने जो सेल दिया हुआ वो सेल बराबर चलेगा. सेल बराबर चलेगा मतलब जिंक विल एक्ट एज अ एनोड एंड क्रोमियम विल एक्ट एज अ कैथोड. तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर हमारा E0 सेल का आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है. यहाँ पे उन्होंने पूछा नहीं, बट आई राइट डाउन सिंस E0 cell is positive, हमारा जो रिएक्शन है, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. ओके, मतलब यदि यहाँ पे नहीं लिख सकते हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हमें और आगे कैलकुलेट, लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखना कि अगर हमारा E0 सेल पॉजिटिव रहा तो रिएक्शन कैन बी व्हाट? स्पॉन्टेनियस. ओके, E0 सेल मिला. अभी यहाँ पे देखो, अगर हमारा सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में होता, मतलब इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार और इसका भी कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 मोलार, तो हमारा आंसर क्या आता था? E0 सेल. लेकिन नाउ आई हैव टू गो फॉर द नर्स इक्वेशन. क्यों नर्स इक्वेशन? बिकॉज क्योंकि हमारा सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है. देखो यहाँ पे देखो, तो अगर हमारा सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में हो तो मैंने क्या लिखा था? द फर्स्ट टर्म ऑन राइट साइड, द फर्स्ट टर्म ये on right side indicates what? Electrochemical condition. मतलब electrochemical condition. Okay, और अगेन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल, मतलब अगर हमारा सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में होता तो इतना पार्ट की जरूरत ही नहीं है. करेक्ट, इतने इसमें आ जाएगा आंसर. लेकिन अभी आगे ये पार्ट करना है करेक्शन वाला. तो आई जस्ट गो हियर फॉर नेक्स्ट. Okay, now we'll write down the equation. What is Nernst equation? The Nernst equation is E cell equal to E0 cell minus 0.0592 upon N log to the base 10
concentration of the product divided by the concentration of the reactant. ये हमारा नर्स्ट इक्वेशन है, करेक्ट. तो अभी इस इक्वेशन में आपको सब्स्टिट्यूट करना है E0 cell. What is the value of the E0 cell? We got 0.02 minus 0.0592 upon n. N is called as what? Moles of electron. How many moles of electron involved? The moles of electron involved are 6. Log to the base 10. Product. अभी देखो ये आपका प्रोडक्ट है, ये तुम्हारा सेल रिएक्शन है, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, और जो भी कोएफिशिएंट रहेंगे दे विल बी रिटन एज द पावर. सो यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस 3 है, तो Zn2 प्लस का पावर 3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्रोमियम, पावर क्या लिखोगे 2, डिवाइडेड बाय concentration of the reactant. Reactant में क्या आ रहा है 3Zn and 2 chromium 3 plus n. 3Zn, so Zn raised to 3 and chromium 3 plus raised to 2. देखो Zn का पावर आएगा 3 और क्रोमियम 3 प्लस का पावर आएगा 2. क्रोमियम 3 प्लस का पावर, ये हमारा इक्वेशन, करेक्ट. लेकिन हमें यहाँ पे कंडीशन मालूम है, pure solids and liquids have concentration at unity. मतलब अगर हमारे पास प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड अगर रहेगा तो उनका कॉन्सेंट्रेशन हमें कितना लेना है, 1 लेना है बस, करेक्ट. अभी देखो इस इक्वेशन में जिंक मेटल इन द विच स्टेट सॉलिड, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 आएगा, और क्रोमियम इन द सॉलिड से इसका भी कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा, 1 आएगा. और Zn2 प्लस का दिया हुआ है, Zn2 प्लस एंड क्रोमियम 3 प्लस, देखो दिया है Zn2 प्लस दिया हुआ है और क्रोमियम 3 प्लस भी दिया हुआ है, करेक्ट. और इनके सॉलिड स्टेट में इनका कॉन्सेंट्रेशन 1 है. राइट डाउन हियर 0.02 माइनस, इसे डिवाइड करना पड़ेगा, 0.0592 डिवाइड बाय 6, कोई डिवाइड करो, 0.0592 डिवाइड बाय 6 करो, okay, thank you, 0.00986, correct. Okay, and then here log to the base 10. अभी देखो यहाँ पे Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन था 0.08 मोलार और उसका पावर 3, ओके. और एक क्रोमियम सॉलिड है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 रहेगा इंटू स्क्वायर डिवाइडेड बाय Zn मेटल सॉलिड है तो कॉन्सेंट्रेशन 1, और क्रोमियम 3 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 स्क्वायर. सी Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 0.08 रेज़ टू 3, क्रोमियम सॉलिड concentration is 1 square, zinc solid concentration is 1 cube, and chromium concentration is 0.1 square, correct. (0.02 minus 0.0986 log to the base 10. अब इस नंबर को पहले मैं पावर फॉर्म में लिखूंगा. I'll write number as what 8 into 10 raised to minus 2 raised to 3. मतलब पावर मैंने सेम रखा. 0.08 को मैंने कैसे लिखा 8 into 10 raised to power minus 2 लिखा. raised to 1 का 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, और 0.1 को मैंने लिखा
10 raised to minus 1, 1 into 10 raised to minus 1 और पावर फॉर्मूला तो इजी हो जाएगा. 0.08 I have written as what? 8 into power 10 raised to minus 2, और 0.1 I have written as what? 1 into power 10 raised to minus 1 का square. Now I'll just next step. 0.02 minus 0.0986 log to the base 10, 8 cube, 8 cube, 8 का square 16 and 16 into 8. बोलो 8 cube, 8 into 8 into 8 कितना आएगा? Cube of 8, 512. Okay, 512 into, यहाँ पे देखो पावर -2 into 3, so it will become -6, 10 power -6 divided by 1 square is 1 and 10 raised to -1 into 2, तो आएगा 10 raised to -2. देखो नर्स इक्वेशन में बहुत कैलकुलेशन होता है, तो यहाँ पे आगे क्या आएगा देखो 0.02 minus 0.0986 log to the base 10, 512 into 10 raised to, ये पावर है -6 और ये -2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा +4. ये पावर -6 है और -2 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या बनेगा +2. सॉरी, -2 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या बनेगा +2 बनेगा. तो हियर आई विल हैव द नेक्स्ट स्टेप 0.02 minus 4. करेक्ट. अभी हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ये लॉग वाला पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा. लॉग वाला तो मैं क्या करूंगा देखो आगे वाला स्टेप 0.02 minus 0.0986 और यहाँ पे इन द बिग ब्रैकेट log of 512 to the base 10 और इनटू है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं प्लस log of 10 raised to -4 to the base 10. देखो log of a into b, log of a into b, अगर ऐसा लिखोगे तो क्या आएगा log of a plus log of b, log of a plus log of b. Next step 0.02 minus 0.00986 into ब्रैकेट. अब मुझे लॉग बोलो 512 का लॉग तो यहाँ पे आएगा 2.512 7093. ओके थैंक यू. प्लस, लेकिन अभी यहाँ पे एक देखो इधर ये पावर -4 है, लॉग 10 raised to x रहेगा तो x विल कम हियर. तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस और यहाँ पे आएगा -4 एंड log of 10 to the base 10, log of 10 to the base 10. Okay, -4 यहाँ पे आ गया and log of 10 to the base 10. So what we got over here 0.02 minus 0.0986 into 2.7093 और ये प्लस इंटू -4 एंड log ऑफ 10 to the base 10 कितना आएगा 1 आएगा. okay. तो अभी पहले ब्रैकेट सिंप्लीफाई करो, 4 से नंबर माइनस करना पड़ेगा तो यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन बताता हूँ. सो 0.02 minus 0.0986 into 4 में से नंबर माइनस करो तो क्या आएगा देखो 4.00 minus 2.7093. तो 1.2907 or minus, because this number is positive and this number is negative, difference is going to be negative. और वापस चेक करते हैं
Yes. इसमें subtraction is correct. ये माइनस और ये माइनस क्या बनेगा, प्लस 0.00986 इंटू 1.2907. अब ये नंबर बहुत ही स्मॉल नंबर है, तो हमें इसे लॉग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लॉग से. आई जस्ट शो यू बाय लॉग. अगर मैं इसे लॉग से सॉल्व करूंगा यहाँ पे, तो देखो इधर क्या आएगा, लॉग ऑफ 0.00986 करूंगा तो आएगा बार 3. प्लीज टेल मी द लॉग ऑफ 98 अंडर 6. Sir, 9939. 9939. Okay, and then log of plus log of 1.2907, that will be 0. यहाँ पे log कौन से नंबर का देखोगे, 12 अंडर 9. 12 अंडर 9. Sir, 1106. 1106. The numbers are multiplied to each other. तो दोनों को log add कर दो, तो what you get here, 9 plus 6, 15, 4, 10, 12. Now tell me the anti-log of 1045. Sir, 1272. 1272. Okay, thank you. 1272. और यहाँ पे बार 2 है, यहाँ पे बार 2 है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, 0.0. यहाँ पे मुझे ऐड करना है, तो 0 बार 2 था इसलिए 0.0. तो हियर आई गेट द आंसर 0.02 प्लस 0.01272. अगर मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे मुझे कितना आंसर मिलेगा, I get the answer 0.02 plus 1 3 3272. 3272. What is the answer? And they have given the answer as what, 0.0327. तो ये हमारा ई सेल हुआ. ई सेल. देखो तुम्हें पता चला होगा, अगर हमारा सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में हो तो हमारा पोटेंशियल कितना आता था. अगर हमारा सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में होता तो पोटेंशियल कितना था, 0.02. लेकिन हमारा सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है, उसमें इतना पोटेंशियल ऐड हो रहा है. कभी ऐड होगा कभी माइनस होगा. इतना पोटेंशियल क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा चेंज हो गया, तो इसलिए पोटेंशियल कितना मिल रहा है, 0.0332 मिल. ओके, इसीलिए इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन टर्म है और ये हमारा करेक्शन टर्म है. मतलब अगर हमारा सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में होता तो पोटेंशियल कितना होता, 0.02. लेकिन हमारा सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है, उसके कारण हमें आगे वाला यहाँ पे अब एक्चुअली माइनस था, लेकिन कैलकुलेशन करते करते एंड में क्या आ गया, प्लस आ गया. लेकिन कभी यहाँ पे प्लस आएगा कभी माइनस आएगा, तो ये हमारा करेक्शन फैक्टर है. करेक्शन फैक्टर मतलब ये ऐड कभी प्लस होगा और कभी माइनस होगा. ओके, नाउ आई विल जस्ट डू वन मोर न्यूमेरिकल ऑफ दिस टाइम. देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल सिंपल है लेकिन कैलकुलेशंस बहुत लंबा है. ओके, तो आई विल जस्ट डू वन मोर न्यूमेरिकल ऑफ दिस टाइम. Page 119, question 4-5. Page 119, question 4-5. Again, they have said the same one. Calculate EMF of the cell. Calculate the EMF of the cell. दिया हुआ. What is cell? Zn in the solid state. Is solid state being in contact with Zn2 plus, having concentration 0.2 molar, salt bridge.
H plus ion having concentration 1.6 molar in contact with hydrogen gas having pressure 1.8 atmosphere in contact with platinum. ओके, ये हमारा सेल है. देखो यहाँ पे पता देखिए हमारी जिंक का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार नहीं है, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार नहीं है, और हाइड्रोजन का प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर नहीं. इसका मतलब हमारा सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं रहे. करेक्ट. सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इनका सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा. ये एनोड है, लेफ्ट साइड में जो रहेगा एनोड, और ये हमारा सेल फॉर्मूला है. तो सेल फॉर्मूला के जो लेफ्ट साइड में है वो कौन रहेगा, एनोड, और सेल फॉर्मूला के जो राइट साइड में रहेगा वो कैथोड. तो वी राइट डाउन हियर एट एनोड. At which reaction occur? Oxidation half reaction. The reaction taking place at anode is oxidation half reaction. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कैसे होगा, देखो Zn का Zn+2 हो रहा है, तो बहुत सिंपल है, Zn का Zn2+ हो रहा है, ऐसे लिखते जाने का. Zn का Zn+2 हो रहा है, यह ऑक्सीडेशन हुआ. और एट कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन. कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन. तो रिडक्शन किसका होगा, देखो ऐसे यही फॉर्म, Zn का Zn+2 होगा और H प्लस का H2 होगा. तो यहाँ H प्लस का H2, देखो ना, चार्ज यहाँ पे बढ़ रहा है और यहाँ पे चार्ज कम हो रहा है. ओके, अब बैलेंस करो, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा. ओके, Zn1 यहाँ पे 0 चार्ज है, तो +2 एंड -2, ये हमारा ऑक्सीडेशन. रिडक्शन में क्या आ रहा है, H2 चार्ज डिक्रीज हो रहा है. रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यहाँ पे चार्ज 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 एंड +2. ये रिडक्शन है. दोनों इसमें इलेक्ट्रॉन सेम है, तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, तो दोनों को ऐड कर दो. देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है. ओके, तो हियर आई विल ऐड द इक्वेशन Zn plus 2H plus gives you Zn2 plus H2. और यहाँ पे लिखना है Zn हमारा मेटल सॉलिड स्टेट में, कैसे लर्न करने की जरूरत, दिया हुआ है. H प्लस आयन्स है और H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है. Zn2+ भी आयन्स है और आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है. और हाइड्रोजन गैस है, उसका प्रेशर भी दिया हुआ है. तो इन्फॉर्मेशन दी है, तो अभी मैं न खाली यहाँ पे मालूम है n इज इक्वल टू व्हाट, 2. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस आर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हो रहे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन हो रहे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व आर 2. नाउ आई कैन फर्स्ट कैलकुलेट E0 सेल. E0 cell is equal to E0 of cathode minus E0 of एनोड. कैथोड कौन है, लेफ्ट साइड में जो रहेगा वो एनोड, राइट साइड में कैथोड हाइड्रोजन है. कैथोड हाइड्रोजन है और एनोड जिंक है. कैथोड हाइड्रोजन और एनोड जिंक. अभी यहाँ पे उन्होंने पोटेंशियल मतलब दिया नहीं, उन्होंने भूल गए देने के लिए. तो यहाँ पे स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ जिंक कितना आएगा, -0.76. और स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन नहीं देते क्योंकि ये वैल्यू 0 होती है. जिंक का पोटेंशियल दिया हुआ है, करेक्ट, और हाइड्रोजन का पोटेंशियल नहीं दिया क्योंकि ये वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0 होती है. ये आगे वाले लेक्चर में हम लोग करेंगे. तो हियर आई राइट डाउन, ये वैल्यू हमारा 0.0 है हाइड्रोजन. जिंक का वैल्यू -0.76. हाइड्रोजन का पोटेंशियल 0.0 माइनस जिंक का पोटेंशियल -0.76, तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 0.76. तो हमारा E0 सेल पॉजिटिव है. इसका मतलब अगर हमारा ये सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में होता तो हमारे इस सेल का वोल्टेज कितना होता, 0.76. लेकिन हमारा सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, करेक्शन फैक्टर. हमें फाइंड आउट करना है करेक्शन फैक्टर. तो हम लोग करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग नस्ट इक्वेशन.
what is this equation? E cell equal to E0 cell minus 0.0592 upon n log to the base 10 concentration of the product upon concentration of the reactant. E cell equal to E0 cell minus 0.0592 upon n log to the base 10 concentration of the product upon concentration of the reactant. Okay, so now here in this cell देखो हमें E0 सेल का वैल्यू मिला हुआ है. E0 सेल का वैल्यू कितना है? 0.76. And how many electrons are involved? 2. Log to the base 10 प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन देखो, ये हमारा प्रोडक्ट है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द Zn2 प्लस आयंस है, आयंस का क्या लोगे? कॉन्सेंट्रेशन लोगे. और ये हमारा गैस है, गैस का क्या लोगे? प्रेशर लोगे. तो यहाँ पे आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द Zn2 प्लस इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन. concentration of the Zn2 plus into partial pressure of hydrogen divided by, ये हमारा रिएक्टेंट है, concentration of the Zn into concentration of H plus ion square. Concentration of the Zn into concentration of H plus ion square. Square क्यों? ये Zn 1 है और लेकिन H plus के यहाँ पे नंबर 2 है, तो 2 will be written as the power. तो यहाँ हमारा देखो concentration of the Zn2 plus into partial pressure of hydrogen. Zn अभी सारे टर्म में ये सॉलिड है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 आएगा. तो हियर 0.76 माइनस 0.0, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 9s are 18 and 2 6s are 12. log to the base 10. Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, कितना है? Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 है. ओके, और हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन 1.6 है. तो Zn का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन 1.8 है और ये 1 है और H प्लस एन का कॉन्सेंट्रेशन है 1.6 स्क्वायर. देखो सारे वाले सबसे Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, Zn का 1 और H प्लस एन का कॉन्सेंट्रेशन 1.6. So here I will have 0.76 minus 0.0296 log to the base 10. यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हो 0.2 into 1.8. So 18 in 0, 18 2s are 36. 18 2s are 36. Decimal point after 2, 0.26 divided by 1. 16 का स्क्वायर बोलो, 16 का स्क्वायर बोलो कोई तो, टू 56. ओके, तो यहाँ पे 1.6 into 1.6 करोगे तो डेसिमल पॉइंट ऑफ 2 डिजिट तो आएगा 2.56. तो यहाँ पे 0.36 अपॉन 2.56 आ गया. करेक्ट. सो हियर विल हैव 0.76 माइनस 0.0296 इनटू. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ? अगर आप ऐसे डिवीजन करोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, आपको मेंटेसा मेथड यूज करना पड़ेगा. मेंटेसा मेथड क्यों यूज करना पड़ेगा मालूम है? ये नंबर है 0. यहाँ पे आएगा बार 1 और ये नंबर, तो ये नंबर है स्मॉल और ये नंबर है लार्ज. तो अगर ऐसा करोगे तो आप यहाँ पे प्रॉब्लम होगा. इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको लॉग में कन्वर्ट, लॉग का रेसिप्रोकल लूंगा. ये लॉग और रेसिप्रोकल मतलब कैसे? लॉग 2.56 अपॉन 0.36 करता हूँ. तो ऐसा करने के बाद क्या हुआ, मैंने log x अपॉन y को क्या लिखा? मैंने log y अपॉन x लिखा. जो प्लस था विल चेंज टू व्हाट? माइनस. ऐसा क्यों कर दिया मैंने? क्योंकि मुझे न्यूमरेटर बड़ा चाहिए था, डिनोमिनेटर छोटा. लेकिन नहीं तो प्रॉब्लम क्या होता, यहाँ पे मुझे वैल्यू आता था log -1 और मैं log निगेटिव नंबर का log नहीं देख सकता, तो फिर मुझे मेंटेसा मेथड सारा कैलकुलेशन और बढ़ता था. इसलिए मैं सबसे बेस्ट क्या किया, न्यूमरेटर में बड़ा नंबर लेके आया और डिनोमिनेटर में छोटा नंबर लाया बाय टेकिंग रेसिप्रोकल. और लॉग में जब आप कोई भी नंबर का रेसिप्रोकल जब लेते हो तो साइन चेंज होगा. तो हमारे पास फॉर्मूला है, देखो अगर मेरे पास यहाँ पे log
x अपॉन y को अगर मुझे log y अपॉन x लिखना है तो प्लस विल चेंज टू माइनस, करेक्ट। वैसे में अभी थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, तो हियर वी गेट 0.76 माइनस 0.0296 इंटू log ऑफ 2.5, सॉरी ये माइनस और ये माइनस क्या बनेगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस बनेगा प्लस, एंड log ऑफ 2.56 माइनस log ऑफ 0.36, इनका माइनस करना पड़ेगा। तो हियर वी गेट 0.76 प्लस 0.0296 इंटू, अभी मुझे log बोलो 25/6 का log बोलो 4082 माइनस बार 1 36 का log बोलो 5563। होपफुली यस करेक्ट। ओके, तो अभी मुझे सब्ट्रैक्शन करना है मुझे, तो क्या आएगा देखो यहाँ पे 0.4082 माइनस बार 1 5563 अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा नंबर देखो, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस तो ये बनेगा प्लस, ओके, और ये -1 तो ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस 1 तो यहाँ पे आएगा 0। ओके, तो हियर आई विल राइट 0.76 प्लस 0.0296, एंटीलॉग मत निकालो, ये फॉर्मूला में लॉग था, लॉग ऑफ दिस नंबर माइनस लॉग ऑफ दिस नंबर, यहाँ पे एंटीलॉग नहीं, और इनटू क्या नंबर आ गया 0.8519, ये नंबर आ गया, करेक्ट। तो हियर आई विल राइट 0.76 प्लस, एक काम करो अभी कोई मल्टीप्लाई करो, प्लीज मल्टीप्लाई करो 0.0296 को 0.8519 से मल्टीप्लाई करो, जीरो 0.0252। तो अगर अब दोनों नंबर को ऐड करना है यहाँ पे तो 0.76 प्लस 0.0252 अगर मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे 2587 0 पॉइंट, सो मच आंसर आई एम गेटिंग 0.785 वोल्ट। तो ये हमारा ई सेल आ गया, ई सेल। तो अभी देखो अगर मेरा सेल, अगर हमारा सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में होता तो वोल्टेज कितना आता 0.76 आ गया, लेकिन हमारा सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है, इसीलिए इतना वैल्यू ऐड करना पड़ा, कभी ऐड करना है कभी माइनस करना है, लेकिन ये आंसर आ गया। और यहाँ पे मैंने क्या करेक्शन किया मालूम है, मुझे न्यूमरेटर छोटा नहीं चाहिए था, न्यूमरेटर बड़ा, लेकिन अगर ऐसे भी करके तो होगा कैलकुलेशन, लेकिन यहाँ पे माइनस नंबर आएगा और लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर आप नहीं देख सकते हो, तो फिर यूज करना पड़ता मेंटेसा मेथड, तो बहुत कैलकुलेशन और बढ़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि न्यूमरेटर को बड़ा किया, डिनोमिनेटर को छोटा, रेसिप्रोकल ले लिया, और ये हमारा कैलकुलेशन है, करेक्ट। तो अभी ये टाइप का और एक न्यूमेरिकल बाकी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे, और ये टाइप के न्यूमेरिकल मैं आपको भेज देता हूँ सॉल्व करने के लिए, लेकिन नेक्स्ट थर्सडे के बाद भेजूंगा, क्योंकि मुझे एक थोड़ा 2-3 डाउट क्लियर करना है, ठीक है। तो आई स्टॉप इट ओवर हियर, किसी को कोई डाउट है तो बोल। सर एकदा परत रिपीट बोल। हॅलो सर एकदा रिपीट करा ना।